Ji Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back once again. This is Rafia Zahid, and today we'll be having our second session on parts of speech. And we'll resume the session where we left uh, the last time. We were talking about parts of speech, and in particularly, we were talking about pronouns. So today we'll be talking about the rest of the types of the pronouns, starting with interrogative pronoun. As the title says that interrogative uh, pronoun, so definitely it introduces a question. For example, it may starts with uh, whose pen is this? Which is your house? Uh, what's your name? So all these words that introduce a question, they are also types of pronouns known as the interrogative pronoun. Next, we have demonstrative pronoun. There are four demonstrative pronoun in English language. Demonstrative pronoun एक ऐसे type of pronoun है जो कि they kind of they point a finger towards or something, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं. For example, uh, this is my favorite watch. Uh, I like this movie. Those are good boys, and these are nice fellows. So this, that, these, those, ये चार demonstrative pronouns हैं इंग्लिश में. लास्ट लेक्चर में हमने relative pronoun के बारे में कहा था कि there are 5 relative pronoun जो कि adjective के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जुमले में, and they introduce dependent clause. Dependent और independent clause के बारे में हम फर्दर भी आगे चल के बात करेंगे. अलग लेक्चर होगा उस पर, लेकिन अभी के लिए आपको इन अल्फाज के साथ थोड़ी फेमिलियरिटी जरूरी है. ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सो चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं. अगेन, just like relative pronoun, they frequently function as adjectives as well. Next, we have indefinite pronouns. Indefinite ला nahi. Indefinite pronouns. अब इसमें ये नहीं पता कि कितनी चीजें, number of things are included when we talk about, for example, nobody attended the class. So nobody में ये नहीं पता कि कितने students की हम बात कर रहे हैं. Were they 50 students or were they 400 students? So the number of the students is not definite. So indefinite pronouns जो है non-specific persons और things के बारे में बात करता है. Most are always singular. For example, अगर हम बात करें कि you should respect each other, तो ये भी नहीं पता कि each other में या one another में हम किस specific इंसान की बात कर रहे हैं. कुछ लिस्ट दी गई है indefinite pronouns की. I would advise you कि आप अगर इनको देख लीजिए और इस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, many, neither, none, one, something, somebody, someone. इन पे अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स भी बना लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस की, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट. इसके अलावा नेक्स्ट टाइप जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अगेन जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होती है और दोनों ही एक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें दो ही reciprocal pronoun है इंग्लिश में, each other and one another, and we have been using these reciprocal pronouns probably since we were children.
और बहुत शुरू में अर्ली डेज ऑफ यूजिंग ग्रामर हम इनको यूज कर रहे हैं। सो अगर रिकैपिचुलेट करूं मैं प्रोनाउंस को, तो पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इसके अलावा इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अभी अलग अलग टाइप ऑफ प्रोनाउन है, इंटेंसिव अलग है, रिफ्लेक्सिव अलग है, क्योंकि दोनों में सेल्फ का वर्ड यूज होता है इसलिए टाइटल इकट्ठा दिया गया। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इसके अलावा आज हमने देखे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बाद हम बात करेंगे वर्ब की, जिसमें कोई एक्शन शो किया जा सके। A verb is the action of the sentence. It shows के जो एक्शन हो रहा है वो क्या है. If a person is running, whether a person is painting, a lady is sleeping, or someone is reading a book to the lady. So आपको एक्शन बताता है verb जो है वो. Okay. If I give you this example that Aaron is running the 5K, what is Aaron doing? So the action of Aaron would be, of course, a verb. Here the action is running, so C would be the answer to this MC. Right. Here is an exercise given, 57-2, अगर आपके सामने आ रही है तो अगर आप इसमें से ढूंढ सकें कि वर्ब कौन सा इसमें अंडरलाइन कर सकें कि वर्ब है, कौन सा प्रोनाउंस है, कौन से एडजेक्टिव्स हैं या कौन से एडवर्ब्स हैं। ठीक है, सो इन चीजों को भी आप देखिए कि इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास एक हफ्ता है, उसमें आपने पहले तो प्रोनाउंस को अच्छे से देख के आना है फॉर द अपकमिंग क्लास। दूसरा जो आपका टास्क है वो ये है, 57-2 की जो एक्सरसाइज है इसको आप अटेम्प्ट करेंगे एंड यू वुड हाईलाइट फ्रॉम एवरी ईच एंड एवरी स्टेटमेंट कि उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब कौन से हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे हर लाइन में मौजूद हों, हर स्टेटमेंट में मौजूद हों। सो जो भी चीजें मौजूद हैं वो आप उसे हाईलाइट करेंगे और आप उनकी टाइप भी बयान करोगे। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और मे बी दिस इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव है क्या भला? ये नाउन और प्रोनाउन की किसी खासियत को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन शर्ट है, सावर लाइन्स है, या हॉट सूप है, तो सूप की क्वालिटी है हॉट, लाइम की क्वालिटी है सावर, शर्ट की क्वालिटी है ग्रीन। सो ये डिफाइन करता है नाउन या प्रोनाउन। Aaron has a blonde hair. Okay, so Aaron is a noun here. Hair again is a noun. So what is adjective here? As I told you that it defines a kind of quality of the noun or pronoun. So यहाँ पे hair की quality, उनका जो color है hair का, वो define किया गया है, that is blonde hair. So इसमें option A is the right answer. यहाँ पे ऊपर दिया भी गया है कि option A is the answer. Adjectives की अगर हम बात करें, उसको अगर डिटेल में देखें, तो an adjective is a word used to modify or describe a noun or pronoun. An adjective usually answers one of these questions: which one, what kind of, how many. The lame elephant, तो elephant में इजाफा किसने किया? elephant की definition में lame में। ठीक है,
वो लंगड़ा रहा है। वैल्यूएबल ओल्ड स्टैम्प्स 16 कैंडल्स। सो अगर आप देखें तो इसमें डिजिट भी है, इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, कि उसमें नंबर भी इन्वॉल्व है, उसमें क्वालिटी भी इन्वॉल्व है। Grammarians also define adjective according to their form and their typical position in a sentence. The kind of word that usually comes before a noun in a noun phrase is usually an adjective. Noun से पहले आता है usually, noun को define करता है, ठीक है। इसमें जैसे देखें 16 candles, 16 पहले आया है कैंडल से, so numeral adjective है ये भी adjective है। और स्टैम्प्स की क्वालिटी क्या है, दे आर ओल्ड। एलिफेंट की जो एलिफेंट के बारे में जो मजीद हमें डिफाइन किया गया है वो ये है कि द एलिफेंट इज लेम, ठीक है। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स क्या होता है, वो वाले एडजेक्टिव जो कि प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन दिस स्टेटमेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ प्रोनोमिनल एडजेक्टिव विद लेट पेंसिल। द डेफिनेट आर्टिकल द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल अ and an are also classified as adjectives, ठीक है। Some possessive, demonstrative, and indefinite pronouns can function as adjective as well. कौन कौन से जो pronouns हैं वो adjectives भी हैं, possessive, demonstrative और indefinite। इसको जब आप वक्त निकाल के थोड़ा रिवाइज करेंगे, so you would come to know about adjectives and their types as well. I will stop here for a while, and of course we'll resume the session on adverbs. I'm giving you a little break so that after every session you take a deep breath and you can just go and recapitulate uh, your definitions. आज की जो क्लास थी, जो सेशन था, उसमें हमने कवर किए कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और ऑफ कोर्स एडजेक्टिव्स, जैसे मैंने कहा था कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट things because they define somehow other aspects of grammar as well। जब आप सेंटेंस बनाते हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लंबे जुमले बनाते हो, तो उसमें जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिक्स करके लिखना होता है, तो बार बार हम वापस जाके याद नहीं करवाएंगे कि ओके दिस इज प्रोनाउन एंड दिस इज prepositional phrase and this that। सो आपको ऑलरेडी टाइप्स जरूर पता होनी चाहिए कि प्रोनाउन और इसकी टाइप्स क्या हैं, और एडजेक्टिव्स, नॉमिनल एडजेक्टिव कौन से हैं और एडजेक्टिव्स कौन से हैं, ठीक है। और न्यूमरल एडजेक्टिव्स पे भी हमने बात की कि कुछ नंबर एडजेक्टिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने देखी थी 16 कैंडल्स वाली, या अगर हम कहें कि देर आर 7 जैगवार इन द जू, तो 7 जैगवार, जैगवार के क्वालिटी में ऐड कर रहे हैं वो 7, तो वो भी न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से आप अपने एग्जांपल्स बनाएं, अपने फ्रेंड्स के नाम इस्तेमाल करें। जितना पर्सनलाइज एग्जांपल्स करेंगे इतने आपको चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है जी। सो आज के सेशन में ये 3 चीजें हमने डिस्कस की, वर्ब, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। इससे अगले जो सेशन होगा उसमें हम रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम उनको देखेंगे। That's all for this session. See you soon. Thank you.